when the child is born and if you have a delayed cry, then it's a very big signal to parents that yes, your child might in later stages have one or the other kind of the difficulty or disability. First 2.5 to 3 years are very, very crucial. Milestones should not be delayed, like crawling, walking. अगर आपका बच्चा behavior out of control कर रहा है जो आपके home environment को या आपके schedule को impact कर रहा है, then you must visit pediatrician or a psychologist or a psychiatrist for help. Your first job is to educate yourself. आप read करें आपके बच्चे के repetitive behaviors क्यों हैं, वो name respond क्यों नहीं कर रहा, वो eye contact क्यों नहीं दे रहा. Autism, ADHD, learning difficulty, disability, specific learning disability increase हो रही है क्योंकि ये hidden disabilities है, ये आपको visible नहीं होंगी. हर बच्चा अपनी पेस पे ग्रो करता है तो उसको टाइम दो. उस टाइम देते देते बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की रैपिड एज है वो निकल जाती है. डाउन सिंड्रोम के बच्चों के फेशियल फीचर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं. सर जो ऑटिज्म और ADHD है और जो LD है ये आप देख के फर्स्ट गो में नहीं बता पाओगे कि इस बच्चे के साथ डिफिकल्ट है. दिस टर्मिनोलॉजी MR मेंटली रिटार्डेड हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम द बुक्स फ्रॉम द स्पेशल एजुकेशन जर्नी. दिस इज एथिकली रॉन्ग. तो क्या हाल है दोस्तों, मेंटालिटी के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है. टुडेज गेस्ट इज मिस आकांक्षा टंडन जो एक स्पेशल एजुकेटर है, बिहेवियरल थेरेपिस्ट है, who has a vast experience of over 12 years in educating, helping special need kids who have ADHD, Down syndrome, autism. बहुत ही informative conversation होने वाली है, so I hope you stay tuned to the entire podcast. Welcome Akansha ji, thank you so much for coming on the podcast. मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा कि where and how did the journey start of becoming a special needs educator? वो journey कहाँ से start हुई? So there was one girl who was living in my society. So she was working as an occupational therapist. So she took me to one of the NGO. The name was HCRA in Delhi. So where my journey started. वहाँ पे मैंने as a volunteer, as a special educator काम किया. I have learned OT techniques, how to work with different needs. Then I've done my BSc in home science where there are 5 fields. उसमें one of the field was child development. Okay. So there I chose this field to become, there was nothing like that I want to be a special educator. It's all about my destiny. Right. Took me here. Right. So after that, I have done my masters from Punjab University. Right. Then I've done my masters in child development. So then after, doing my masters, I was a gold medalist there in Punjab University. So that boosted me to do another degree of bachelor's, but I wanted to take a break. So I started working as a special educator. My journey started with an integrated setup. Right. Where the children with special needs are there in a different setup with other regular neurotypical students. Right. So from there my journey started. It is from 2013. So my first job was with the Umang Learning Center. It was an integrated setup. It's still working in Delhi, West Delhi. So then I started as a mainstream special educator with a mainstream school called Kothari International School, Noida. Right. So I was working there for almost 5 years. So there I was a senior special educator, and Kothari is 100% inclusive school, where 1:24 is the ratio, where one child with other 24 kids, one special need child with other normal neurotypical kids. The child is studying for social development, for emotional development. So they have their team of resource person like special educators, school counselors. They support inbuilt with the students. The setup is inbuilt within the school setup where they support on regular basis. They sensitize teachers, other stakeholders like school admin staff, staff related to your taking care of the toilet training, and several other needs of the child is being taken care in the one same setup. Right. So that where my journey started from 2013, and I am here as a special educator working, online and taking offline sessions. Right. Can you share a defining moment in your career that has reinforced the passion for teaching special needs kids? So I'll share a very good success story. 2 of my kids, now one of the autistic kid, where I started teaching him in grade 4.
Then I taught him around 4 to 5 years in the same school, Kothari International School. So now he is, doing fine arts. And one of the other student, I will not name the student, the other girl, she's doing law. Right. So that motivated me that yes, these children have that different skill set, which, everybody will not be able to understand. You need that patience. You need that kind of skill set to understand the other child need. So I want to ask you, what's the early stages in which a child can be detected with special needs? कितनी जल्दी हम detect कर पाते हैं? Once the child is born, after 4 years, a child, give you that social smile. So it is one alarming if 6 months, 8 months, the social smile and other milestones are delayed, then it will be a red flag. And first, when the child is born, and if you have a delayed cry, because the oxygen level is not being passed to your brain, then it's a very big, signal to parents that yes, your child might in later stages have one or the other kind of difficulty or disability. Right. So I would like to, tell the parents that first 2.5 to 3 years are very, very crucial for your own kids. You need to give time. You need to analyze that where the milestones, it should be on time. Milestones should not be delayed, like crawling, walking. Right. Talking. Nowadays, I am getting students and parents, they're telling that my child is not able to speak till 3 years, till 4 years, and they are not aware. Now I'm living in Dehradun, so I'm getting parents who are actually not aware about these kind of difficulties and disabilities, and they have that stigma that our child is having something. अगर वो स्कूल जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? क्योंकि वो अपने नेम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो आपको आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, उसके नॉर्मल बिहेवियर्स नहीं है. तो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल माय पेरेंट्स, टू ऑल माय लिसनर्स, कि अगर आपके बच्चे के साथ आपको अर्ली स्टेजेस पे फर्स्ट 3 इयर्स में कुछ रेड फ्लैग्स या कुछ डिफरेंट लग रहा है. देखो सर, आज की डेट में बिहेवियर इश्यूज तो सबके हैं, ठीक है. मैं अगर अपने बच्चों को भी बोलूं तो बिहेवियर है, हम बोलते हैं कि ऐसी लेमैन लैंग्वेज में लोग बोलते थे कि मेरा बच्चा हाइपर है, बट टेक्निकली वी शुड नॉट यूज. अगर आपका बच्चा बिहेवियर आउट ऑफ कंट्रोल कर रहा है, जो आपके होम एनवायरनमेंट को या आपके स्केड्यूल को इम्पैक्ट कर रहा है, देन यू मस्ट विजिट पीडियाट्रिशियन और अ साइकोलॉजिस्ट और अ साइकियाट्रिस्ट फॉर हेल्प. जितना अर्ली स्टेजेस पे आप वेट करेंगे कि ये तो फर्स्ट चाइल्ड है, ओवर पैम्पर्ड है, आप स्कूल जाएंगे तब देखेंगे हाइपर ही तो है और बात ही तो नहीं सुनता है, बट आप अगर स्कूल के फीडबैक का वेट करेंगे, दैट विल बी वेरी लेट. आफ्टर 3-4 इयर्स वो आपके इनिशियल इयर्स ऑफ इंटरवेंशन जो है वो आप मिस आउट कर देंगे. बिकॉज एज यू नो, एज स्टडीज शो दैट जो ग्रेटर नीड है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो बच्चे की होती है, वो एट रैपिड जो होती है टिल 6 to 7 इयर्स है. तो आप फर्स्ट 3-4 इयर्स तो आपने ऐसे ही सोच के कि आप जैसे डिलेड स्पीच के बहुत बच्चे आते हैं, वो बोलते हैं कि इसके जो फादर है वो भी लेट बोलते थे, ग्रैंड पेरेंट्स का ये नॉर्मल डायलॉग है, जेनेटिक्स, दैट्स जेनेटिक्स सर. बट वो बोलते हैं जेनेटिक है, बट यू नेवर नो दैट आपके बच्चे के साथ शायद कोई डिफिकल्टी या डिसेबिलिटी लेटर स्टेजेस में आए. आप अभी ये कह के आप इग्नोर कर रहे हो, बट लेटर स्टेजेस में यू नेवर नो कि अगर बच्चा आपका स्पेक्ट्रम पे है, बिकॉज स्पेक्ट्रम इज अ ह्यूज थिंग. कोई बच्चा स्टार्टिंग में कोई माइल्ड है, कोई मॉडरेट है, कोई सिवियर केस. तो अगर आप ये सोच के बोले कि आपके बच्चे के मतलब ग्रैंड पेरेंट्स बोले कि इसका तो फादर भी ऐसा था, लेट बोलता था, लेट चलता था, वो भी ऐसे इंट्रोवर्ट था, सोशली इंटरेक्ट नहीं करता था, तो आप ये सोच के ना बैठे प्लीज. आप ये बहुत ही इग्नोरेंट हो गया ना, क्योंकि उनको पता नहीं है शायद से. अवेयरनेस सर अब तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अवेयरनेस लोगों में आ रही है. हमारे एजुकेटेड पेरेंट्स है सर, जैसे मेरे पास पेरेंट्स आते हैं. अभी रिसेंटली भी मेरे पास एक पेरेंट आए ऊपर उत्तरकाशी से, आई वुड नॉट नेम दैट चाइल्ड. तो दे वर नॉट अवेयर, वो एक नॉर्मल प्ले स्कूल में जा रहे हैं. सो आई टोल्ड द मदर, सी यू कैन नॉट afford, or you cannot take therapies lifelong. Your first job is to educate yourself. आप रीड करें आपके बच्चे के रिपीटेटिव बिहेवियर्स क्यों हैं, वो नेम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा, वो आई कॉन्टैक्ट क्यों नहीं दे रहा. राइट, ठीक है. हम पेरेंट्स को आते ही डरा नहीं देते कि आपके बच्चे के साथ ये डिफिकल्टी है. वी वर्क स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि वी आर स्पेशल एजुकेटर्स, बिहेवियर थेरेपिस्ट, वी कैन नॉट गिव दैट डायग्नोसिस. राइट, ठीक है. वी नो दैट बच्चे के साथ डिफिकल्टी है, बट सर एक डायग्नोसिस देके हम वाई टू गिव अ स्टैम्प
वाई टू गिव दैट लेबल? कि अगर आपके बच्चे के साथ आपको कोई मतलब सिम्टम्स और साइन नजर आ रहा है अर्ली स्टेजेस पे, डोंट वेट फॉर स्कूल सेटअप। बिकॉज सर क्या होता है, नर्सरी, प्री नर्सरी, नर्सरी में बच्चा सेटल होता है क्योंकि प्लेवे मेथड से स्कूल सिस्टम खिला रहे हैं, खेल रहा है बच्चा, आइसोलेट भी हो रहा है, तब भी पेरेंट्स को लगता है या टीचर्स को लगता है कि इट्स ओके, थोड़ा टाइम लगाता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है। फ्रॉम अपर केजी टू ग्रेड 1 का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, इट इज वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर पेरेंट्स, क्योंकि स्कूल सेटअप से भी आपको स्कूल टीचर्स यही कंप्लेन करेंगी कि मैम ये तो बात ही नहीं सुन रहा, इसकी तो सिटिंग ही नहीं है, ये तो पूरा टाइम ऑन द राउंड्स है, क्लास में बैठ ही नहीं रहा। तो पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होता है कि मैम यही बच्चा था जो आपके पास पहले भी आ रहा है, और यही बच्चा था जो सेटल था, आपने तो कभी कंप्लेन नहीं करी। पेरेंट्स को एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है, पेरेंट्स आर नॉट एजुकेटेड, तो हाउ टू एजुकेट पेरेंट्स एंड कन्विंस देम दैट देयर इज एन इशू विद योर चाइल्ड, और उसको हेल्प करे, असिस्ट करे, make them go to a counselor and all of that. So how to educate the parents first? Good question, sir, because this starts from a school. सारी कहानी स्कूल से शुरू होती है सर। जैसे अगर घर में बच्चे ने पेरेंट ने इग्नोर कर दिया, बिकॉज हमारे पास घर पे बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम है, हम शायद कवर कर लेते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स कवर कर लेते हैं। मदर जो होती है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है, बिकॉज मदर इज द 1% जो बच्चे के साथ 24/7 रहती है। अगर मदर नानी के घर भी गई तो मदर बच्चे को लेकर जाएगी। तो पेरेंट्स का, यहाँ आई एम सो सॉरी, फादर्स का भी रोल होता है, बट मदर एक ऐसी फिगर है एक बच्चे की जिंदगी में जो सबसे पहले आइडेंटिफाई करती है। बहुत सारे स्कूल्स हैं सर जो एक काउंसलर को अपॉइंट नहीं करते, एक स्पेशल एजुकेटर को अपॉइंट नहीं करते। मैं सर रीजन क्या है, क्यों नहीं करते हैं? सर एक टाबू है शायद स्कूल सिस्टम्स में भी, कि ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है कि हमारी टीचर्स बहुत वेल क्वालिफाइड हैं, वी आर सेंसिटाइज, हमें पता है कि बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे करना। बट सर बीइंग इनटू दिस फील्ड फ्रॉम 12 years, मैं भी आज तक अपने आप को अपडेट कर रही हूँ। सो मैं कमिंग टू दिस पॉडकास्ट ऑल्सो, मैंने भी अपने आप को अपडेट किया कि कौन कौन सी और पॉलिसीज हैं। और सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी अभी रिसेंट आई, आई एम वेरी सॉरी टू से, आई विल नॉट नेम द स्कूल। वहां की स्कूल सिस्टम, जो स्कूल हेड है, उनको ही नहीं पता था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एक बच्चे को grade 1 का बच्चा should be eligible once he's 6. Less than 6 years of an age, a child is not eligible. तो सर मेरी ये रिक्वेस्ट है स्कूल सिस्टम्स के साथ कि आपको अपडेट होना पड़ेगा, आपको स्कूल काउंसलर्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू CBSE या ICSE बोर्ड का मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, बट CBSE की बहुत सारे प्रोविजंस हैं कि आपको एक हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर, एक काउंसलर होना चाहिए। यू कैन नॉट से नो टू एनी चाइल्ड। सर बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली एक एडमिशन को बोलते थे कि आपका बच्चा हमारे स्कूल के सिस्टम के साथ और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सेटअप नहीं हो पाएगा। हर स्कूल एक स्पेशल एजुकेटर, एक क्वालिफाइड स्पेशल एजुकेटर, एक बिहेवियर थेरेपिस्ट, एक काउंसलर का अपॉइंट करें। इट इज द नीड, बिकॉज सर जिस तरीके से ऑटिज्म, ADHD, लर्निंग डिफिकल्टी, डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये हिडन डिसेबिलिटीज है, ये आपको विजिबल नहीं होंगी, ये विजिबल डिसेबिलिटीज नहीं है। जैसे आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी आपको नजर आ जाएगी, आपको डाउन सिंड्रोम वाला बच्चा, फिजिकल अपीयरेंस से आपको पता चल जाएगा इस बच्चे के साथ कोई नीड है। बट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी, आप ऑटिज्म आप आइडेंटिफाइंग वन गो में नहीं कर सकते। अभी भी सर मेरे पास आफ्टर दिस 12 years ऑफ एक्सपीरियंस बच्चे आते हैं, मैं एक सेशन में नहीं बता सकती कि इस बच्चे को ऑटिज्म है, क्योंकि कई इट्स अ स्पेक्ट्रम। कई आपके हाई लेवल्स ऑफ IQ वाले बच्चे जो गिफ्टेड हैं वो भी स्पेक्ट्रम पे है। आजकल आप सुन रहे होंगे एक वर्चुअल ऑटिज्म भी आ रहा है सर। वर्चुअल ऑटिज्म वो है सर, जैसे बच्चा पूरा टाइम स्क्रीन में रह रहा है, वो वही लैंग्वेज, वो वही टोन ऑफ इमिटेट करेगा, वही इंटोनेशन से, क्योंकि आजकल सब पेरेंट्स को अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना, इंग्लिश बुलवानी है, तो वही पेपा पिग की टोन और वही छोटे भीम की टोन, वही एक कार्टून जो आते हैं आजकल में, लैड एंड निकी, वही टोन बच्चा बोलता है। तो वो उसकी नेचुरल सेटअप में सर इनबिल्ट हो जाता है, स्पीच में चली जाती है। या फिर अगर आपने कई एग्जाम्पल्स सुने या देखे होंगे, रिपीटेटिव बिहेवियर्स। सो सर ये वर्चुअल ऑटिज्म है जो ओवर द टाइम आप बच्चे के साथ ठीक कर सकते हो, इट्स नॉट इनबिल्ट। क्योंकि ऑटिज्म क्या है सर, अगर आपने आमिर खान की मूवी तारे ज़मीं पे देखी हो तो उसमें बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाया है कि वायरिंग में प्रॉब्लम है, ब्रेन वायरिंग में। तो इट इज ऑटिज्म जो आपकी इट्स सर अभी तक कोई रिसर्च फाइंड आउट नहीं कर पाया कि व्हाट इज द कॉज। जेनेटिक है, एनवायरमेंटल है, तो इट इज
the research, the studies are still going on. Right. So मेरी ये रिक्वेस्ट है स्कूल सिस्टम्स के साथ कि अपनी टीचर्स को सेंसिटाइज करें, अपने अदर स्टेक होल्डर्स जो स्कूल में एडमिन स्टाफ है, जो भी स्टाफ है, उनको सेंसिटाइज कीजिए रेगुलरली, वर्कशॉप्स कंडक्ट करके फ्रॉम गुड प्रोफेशनल से, काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से, रेगुलरली मीटिंग्स करें विद इन द स्टाफ टू डिस्कस अ पैनल, कि फॉर एग्जाम्पल एक एक्स टीचर के साथ एक बच्चे के साथ प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट इट शुड बी अक्रॉस डिस्कस विद इन द स्कूल सेटअप. Correct. इट शुड नॉट बी टेक बैक होल्ड कि नहीं, अगर हम डिस्कस करेंगे तो आर मैनेजमेंट विल थिंक कि ये टीचर इस बच्चे को हैंडल नहीं कर पा रही है. बिकॉज सर मैं एक ऐसे सेटअप से होकर आई हूँ कि वहां सर जब एडमिशन लेते हुए हमने बच्चे को असेस किया था, इट वॉज एवरीथिंग वॉज नॉर्मल. कि फर्स्ट सेशन में आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. इट took almost 1 week to 10 days of non-participatory observation. Yes, इस बच्चे के साथ इमोशनल ट्रॉमा हुआ या इसके साथ इमोशनल डिफिकल्टीज हैं, ये जेल अप नहीं होता सोशली, तो इट्स अ वेरीड क्लास. आई थिंक कि पेरेंट्स को भी इतना अवेयर करना चाहिए स्कूल सिस्टम में. पेरेंट्स के साथ रेगुलर पेरेंट सर्कल होना चाहिए, पेरेंट्स के साथ वो वर्कशॉप्स कंडक्ट करनी चाहिए जिससे पेरेंट्स भी ओपन अप हो टू आस्क क्वेश्चंस. राइट. So this is the alarming need of upcoming generation. Right. चाहे वो स्क्रीन से रिलेटेड वर्कशॉप्स कंडक्ट करें, शायद तब पेरेंट्स बहुत, क्योंकि स्क्रीन एक ऐसा टॉपिक है सर जो पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. बच्चा नहीं खाता तो आजकल पेरेंट्स फोन दे देते हैं, तो इट इज वेरी इजी फॉर देम. Yeah, that's a shortcut to. That's a very, but उसके साथ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत है. Right. Which parents are very much fail to understand कि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे. Coming back to what you said, that parents need to be educated and sensitized about this. So एक थोड़ा सा एक incident है, and what your opinion on that? Because I know somebody, Right. a child was studying in class 10th in a school, Right. and repeatedly जो उनकी teacher उसको mentally retarded बोलती थी, और उसकी वजह से उसको anxiety हो गई, and she started having hearing problems. Very So sad. in that scenario, who's responsible? Is the school responsible? Is the teacher responsible, or the parent responsible? Sir, I think it's a school system. Teachers, they are not updated. This terminology, MR, mentally retarded, has been eliminated from the books, from the special education journey. We call it as intellectual disability. And sir, as a professional, we deal with parents, we deal with school system. वही सर मैं उस पे चीज पे वापस आऊंगी कि अगर आप सेंसिटाइज नहीं होंगे, आपको पता ही नहीं है कि बच्चे के साथ डील कैसे करना, ये टर्मिनोलॉजी तो हम कभी भी यूज नहीं कर सकते. और वो अगर बच्चे के साथ यूज करें, हम बच्चे को बच्चे के सामने नहीं डिस्कस कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ किड एंड एक एक्स टीचर मेरे से आपके बारे में डिस्कस कर रही है, दिस इज एथिकली रॉन्ग. वी कैन नॉट डिस्कस अ चाइल्ड और एनी चाइल्ड, बी इट अ चाइल्ड विद डिफिकल्टी और डिसेबिलिटी और इट्स अ न्यूरोटिपिकल चाइल्ड. Right. It's ethically wrong. We cannot discuss. Two adults cannot talk about ex child. It is wrong. So I am very sad. I don't know that this should go to that school. I'm sure that teacher, that school staff should be aware that we cannot use terminologies like this. उस बच्चे की साइकोलॉजी पे इमोशनल ट्रॉमा कितना हुआ होगा, she's undergone so much कि मेरे साथ ऐसी क्या डिफिकल्टी है, इतना स्ट्रेस लेवल बिल्ड हुआ कि उसकी नर्व्स वीक हो गई और उसको हियरिंग प्रॉब्लम होने लगी. आई एम फीलिंग वेरी सॉरी फॉर दैट गर्ल जिसके साथ ये हुआ, एंड आई एम वेरी वेरी सरप्राइज कि हम ऐसे माहौल में बड़े कर रहे हैं अपने बच्चे को, ऐसे एजुकेशन सिस्टम में बड़ा कर रहे हैं जहां पे लोगों को इतना सेंसिटिव वर्ड यूज कर रहे हैं जिसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बच्चे के साथ है. इसमें अकाउंटेबिलिटी किसकी है फिर, जो एंड शी हैड टू लीव द स्कूल बिकॉज ऑफ दिस. वेरी सॉरी सर, उस बच्चे की जिंदगी खराब करी सर. मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी थोड़ा अवेयर होके, एंड दे शुड कन्फ्रंट इट टू द स्कूल सिस्टम, स्कूल टीचर्स, स्कूल एडमिन स्टाफ कि व्हाई यू आर कीपिंग these kind of teachers who are not being aware and they are not being sensitive and sensible enough to deal with these kind of difficulties or disability. It is so sensitive. उस बच्चे की लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट, इमोशनल इम्पैक्ट, और उसके ऊपर जो एक्चुअली दिस इज अ चाइल्डहुड ट्रॉमा. इट्स एक्चुअली अ ट्रॉमा. ट्रॉमा इज अ बिग वर्ड, एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा जो वो अपनी पूरी लाइफ में सर शायद वो जो करना चाह रही थी वो नहीं कर पाएगी.
बट आई होप उसको ऐसी अपब्रिंगिंग पेरेंट्स से या ऐसी प्रोफेशनल हेल्प से उस चीज से बाहर लेके आया जाए. एंड वेरी सॉरी कि हम एज ए सिस्टम हम वी आर फेलिंग. सो जैसे ऑटिस्टिक किड्स वगैरह हो गए एंड यू फॉर ट्रीटमेंट स्टेम सेल ट्रीटमेंट होता है दैट वी वर ऑफलाइन वी वर डिस्कसिंग हाउ इफेक्टिव इज द स्टेम सेल ट्रीटमेंट. सर इट्स वेरी आई वुड से मेरे पास सिर्फ एक या दो केसेस आए जिनकी बहुत सक्सेस स्टोरी है रिलेटेड टू स्टेम सेल, बिकॉज ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है. अभी तक सर ऐसा कोई सक्सेसफुल केस नहीं सुना मैंने 12 years और 13 years ऑफ दिस जर्नी में कि जो बच्चा पूरी तरीके से ही इज बैक टू द नॉर्मल रूटीन. जैसे सर इम्प्रूवमेंट मैंने सुनी है एक दो पेरेंट्स से, जो पेरेंट्स मेरे पास रिसेंट पेरेंट्स भी आ रहे हैं. They have gone for first session of stem cell. They are now planning for a second, level of stem cell. Sir, it is not easy for every individual who has their kid with on spectrum, because it's not very cheap. It's not cheap at all. It's a very expensive treatment. Sir, being in this field, मुझे ऐसा लगता है कि सर 100% changes नहीं आते. चाहे आप फर्स्ट 2 levels करा लो या 3 करा लो, उसके बाद भी सर बहुत सारी चीजों के लिए आपको थेरेपीज तो सर लाइफ लॉन्ग चलेंगी ना. थेरेपीज पे तो बच्चा रहेगा ही. ऐसा नहीं है कि बच्चा पूरा इंडिपेंडेंट हो जाएगा. यस, जो मैंने इसके गुड फीडबैक सुने हैं वो ये कि यस बहुत सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट आया. वन एग्जाम्पल इज लाइक बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव था, अब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ, बेटर हुआ ही है उसकी अंडरस्टैंडिंग. राइट. बट आप सोचो कि प्रॉपर उसका आईक्यू लेवल प्रॉपर एज अप्रोप्रिएट हो गया या बच्चा पूरा रेगुलर फंक्शनिंग करने लगा है. नहीं, इसमें कुछ इसका इज देयर एन अल्टरनेटिव टू स्टेम सेल ट्रीटमेंट आल्सो? सर थेरेपीज ही हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, बिहेवियर थेरेपी, यही थेरेपीज ही हैं. कोई एज सच साइंटिफिक ऐसा रिसर्च जो चल रही है अभी स्टेम सेल पे, इसके अलावा तो सर मेरी नॉलेज में नहीं है कि ऐसा कोई और ट्रीटमेंट है. स्टेम सेल है, अब इट्स बिकमिंग अ बूम ऑफ स्टेम सेल. जैसे पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं, जो एलीट क्लास पेरेंट्स है वही अफोर्ड कर पा रहे हैं. मिडिल क्लास पेरेंट मेरे पास कोई ऐसा नहीं आया, क्योंकि बिकॉज इट्स अ ट्रीटमेंट विच इज टेकिंग lakhs. राइट. सो 7-8 lakhs का सर फर्स्ट लेवल है, 7-8 lakhs का सेकंड है, फिर लेटर ऑन 3-4 levels है. मैंने ऐसी स्टोरीज भी सुनी है जो 4 levels करा चुके हैं, बट 100% बच्चा प्रॉपर वैसी फंक्शनिंग नहीं कर पा. थेरेपीज कम हुई है बच्चे की, सेटल्ड हुआ है बच्चा, डे टू डे लाइफ में इंडिपेंडेंटली चीजें करने लगा है जो वो पहले नहीं कर रहा था. सो आई विल नॉट से कि इट्स 100% रॉन्ग, बट आई विल नॉट से इट्स 100% करेक्ट कि बच्चा फुल फ्लेजेड अपनी नॉर्मल रूटीन में. राइट. What are the common misconceptions that people in general have about special needs kids? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि टैबू है कि अगर हम स्पेशल एजुकेटर के पास या हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो इसको कुछ माइंड रिलेटेड या मेंटल इलनेस है, जो आजकल एक वर्ड मेंटल इलनेस हम यूज कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर हम यूज कर रहे हैं. तो अगर हम किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास जाएंगे, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है या साइकाट्रिस्ट है, तो इसको कोई ऐसी इलनेस है तो उससे बहुत, चाहे वो फैमिली है, फैमिली में एक्सेप्टेंस नहीं है. जैसे सर मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी. एक पेरेंट आया था, वो रिलोकेट हुए थे कहीं से, दे हैव बीन शिफ्टेड टू देहरादून वेयर आई लिव. वहां पे सर पेरेंट को लगता था कि अगर हमारी फैमिली को पता चलेगा कि बच्चा इज गोइंग फॉर अ सो एंड सो स्पेशल एजुकेशन या बिहेवियर थेरेपी के लिए जा रहा है, तो उसमें एक्सेप्टेंस नहीं होगी. उनको लगता है कि बच्चा, शायद इसके फादर भी लेट बोलना शुरू हुए थे, बच्चा इंट्रोवर्ट इसलिए है क्योंकि उसके फादर भी ऐसे थे. हर बच्चा अपनी पेस पे ग्रो करता है तो उसको टाइम दो. बट मैं ये बोलना चाहूंगी सर, उस टाइम देते देते बच्चे की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट की रैपिड एज है वो निकल जाती है. 2 ग्रोथ थेरेपीज उसके बाद भी पेरेंट्स लेते हैं, चलती है. बट सर जो रैपिड ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो सर फर्स्ट 3 years में, 5 to 6 years बोलते हैं एज अ रिसर्च, बट जो रैपिड ग्रोथ है वो 3 years तक है. तो मेरी पेरेंट्स से बार बार यही लिसनर्स से रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट 3 years अगर आपने बच्चे को टेक केयर कर लिया, आई नो बहुत सारी वर्किंग मदर्स हैं, उनको लगता है कि अगर हम अपने बच्चे को अगर छोड़ के जाएंगे तो हु विल बी टेकिंग केयर. तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आजकल बहुत सारे अकोमोडेशंस हैं, आप
ग्रैंड पेरेंट्स तो सिर्फ फीडिंग वगैरह देख सकते हैं, दे आर नॉट वेरी वेल अवेयर कि बच्चे के साथ कैसी नीड्स और कैसा सिनेरियो और होम सेटअप होना चाहिए। कि आप या तो डे केयर फैसिलिटीज या फिर ऐसा परफेक्ट सिस्टम ढूंढिए अपने बच्चे के लिए, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम, बहुत सारी फैसिलिटीज आफ्टर कोरोना जो हमारी पॉजिटिव चीजें आई हैं, ऑनलाइन बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, द वर्किंग मॉम्स कैन वर्क फ्रॉम होम। सो फर्स्ट 3 years तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैं आपके क्वेश्चन पे दोबारा आऊंगी कि ये एक टैबू है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे एजुकेटेड पेरेंट्स भी हैं सर, उनको लगता है कि अगर हम अपनी फैमिली मेंबर से डिस्कस करेंगे तो उन्हें लगेगा कि इस बच्चे के साथ ये ऐसी डिफिकल्टी है, ये एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर पे क्यों जा रही है, ये तो बहुत ज्यादा सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है उस बच्चे के साथ। ग्रैंड पेरेंट्स और यूजुअली एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स ये सोचते हैं कि मेरा बेटा भी लेट बोला था, जैसे मदर इन लॉज बोलती हैं, और लेट सब बच्चे लेट बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो लेट बोलते हैं, लेट चलते हैं, सब बच्चा अपनी पेस से चलता है। बट जो आइडल एज से अगर बच्चा माइलस्टोन डिले हो तो इट्स एन अलार्मिंग सिचुएशन। तो आपको तब एक मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास, चाहे साइकोलॉजिस्ट पे जाए, चाहे किसी बिहेवियर थेरेपिस्ट पे या स्पेशल एजुकेटर पे जाए, बट यू शुड गो। तो ये जो टैबू क्रिएट किया हुआ, ये आपको ही एज अ मदर, एज अ पेरेंट विद इन फैमिली, यू ओनली हैव टू सेंसिटाइज। कोई या आपका फैमिली डॉक्टर सेंसिटाइज कर सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगी सर, एक बच्चा था, जैसे वो उसका क्राइंग बिहेवियर था, वो अपनी रोते रोते सर अपनी सांस जो है वो अटका लेता था, एंड ही क्राइज फॉर अ लॉन्गर स्ट्रेस विदाउट टेकिंग अ ब्रीथ। अच्छा। तो उसके लिप्स सर येलो हो जाते थे, तो येलो सॉरी वायलेट कलर के, पर्पल, और आफ्टर अ मूवमेंट सर वो एकदम बॉडी को ढीला छोड़ देता था। वी हैव डिस्कस इट विद द डॉक्टर। तो डॉक्टर ने हमें बहुत अच्छी एक लाइन में जो चीज बोली कि वंस योर चाइल्ड इज डूइंग, उसको वहीं छोड़ो एंड यू रन आउट ऑफ द रूम। तो सर ये एक जो डॉक्टर ने बताई ये बात वाज डिफरेंट जो एक घर का फैमिली मदर बताएगी, बिकॉज इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट फ्रॉम द डॉक्टर। हाउ डू यू आइडेंटिफाई द यूनिक strengths and talents of each child that you are dealing with? आप कैसे identify them? See, first session will be the parental interaction, the history taking session. So we have a format where we create, we have, whatever the child related thing, the background information, prenatal, postnatal difficulties from the parents, from the both the parents, father and mother. I usually call both the parents so that it's open discussion with the parents. Then I would, tell the parents ki first 3 session will be the observation sessions, where we have certain kind of checklist where we see the eyes, eye contact, the ice breaking session with the child with few games, tabletop activities, lot of social play with rhymes, with, poems like the traditional poems, Ringa Ringa Roses, to see the water play. We need to check what is the interest area of the child. Like few kids, the kids on spectrum, they come and they have this fixation with the wheels of the cars, the movement of the toys. Right. So some kids are very fixated with the, light impact. So I use torch or light and sound toys. So first 3 sessions are basically to identify that what is the current need of the child, what is the skill set. So in our language, we call it as reinforcers. So what are the positive reinforcers of the child? What are the negative reinforcers of the child? So basic thing is to eye contact, rapport building session with lot of games or a lot of social interaction. Then it comes to, the second thing is tabletop activities. First is lot of play to make the child very comfortable with you and with your environment. You provide lot of games, different kind of blocks, puzzles, water play, bubbles. So these kind of things help to identify the child strength and weakness. And then we call the parents to discuss that these things we have been, I was working on this and these are the things I have identified with your child, and so my next plan will be. So we create a systematic IEP, whether it's a school scenario, whether it's a clinical setup. So we create an individual education plan or program for each child. Because every child is customized for every child. सो स्पेशल एजुकेशन का सिर्फ सर यही रोल नहीं है कि बच्चा, बहुत मिसकंसेप्शन है ऐसे हमारी जनरल पब्लिक हो गई, स्पेशल एजुकेटर सिर्फ रीडिंग और राइटिंग कराता। तो ऐसा नहीं है सर कि सिर्फ रीडिंग और राइटिंग कराते हैं हम। आपके बच्चों को स्कूल रेडीनेस
क्रिएट करते हैं, सिटिंग स्पैन इंक्रीज करते हैं, लिसनिंग स्किल्स एबिलिटीज जो आपके बच्चे में नहीं है वो एनहांस करते हैं. Right. सो इट्स अ मल्टी सेंसरी अप्रोच Right. एंड फॉर एवरी चाइल्ड इट्स डिफरेंट. Autism हो गया, ADHD हो गया, Down syndrome हो गया. राइट. How do you approach them and how do you deal with these children individually? And what is the differentiation between Down syndrome, autism and ADHD? डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं, अगर आपने देखे हो या आप स्टडी करी हो, तो डाउन सिंड्रोम के बच्चों के फेशियल फीचर्स थोड़े डिफरेंट होते हैं. Right, right. ठीक है. किसी की हाइट थोड़ी शॉर्ट होती है, उनकी फ्लैट नोज होता है. तो हर बच्चा जो डाउन सिंड्रोम का होगा, आपको अगर पता नहीं है वो डाउन सिंड्रोम का, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इस बच्चे को देख के लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि उनके फेशियल फीचर्स ऐसे. जैसे सेरेब्रल पॉलिसी है, उसमें फिजिकली आपकी या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड में कोई डिफॉर्मिटी हो. सर जो ऑटिज्म और ADHD है और जो LD है, ये सर विजुअल डिफिकल्टीज और डिसेबिलिटीज नहीं है. आप देख के फर्स्ट गो में नहीं बता पाओगे कि इस बच्चे के साथ डिफिकल्टी, अनटिल अनलेस बच्चे के साथ आप प्लेवे उसमें 5-10 मिनट्स या हाफ एन आवर या 1 आवर आपने स्पेंड नहीं किया, या आप गुड सोशल इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो, तो आपको पता चलेगा. क्योंकि ऑटिज्म में सर जो 3 मेन चीजें हैं, फर्स्ट इज योर सोशल इंटरेक्शन, सेकंड इज आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, आपका बच्चा कुछ डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, अपने नेम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उस सोशल गैदरिंग में आपका बच्चा कुछ डिफरेंट बिहेव कर रहा है. सर कई बच्चे ऐसे हैं जो सोशल इंटरेक्ट नहीं करते, आई कांटेक्ट देते हैं. तो हर बच्चा डिफरेंट है सर, जो मैंने बोला ये एक स्पेक्ट्रम है. सो हमारे लिए भी सर जब बच्चे आते हैं तो उसको 2 से 4 दिन 4 to 5 सेशन ऐसे लगते हैं कि अच्छे से समझने के लिए, बीइंग इन दिस फील्ड ऑल्सो. और सर ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है एज अ मतलब ऑडियंस को भी स्टडी करने के लिए, जिनको अवेयरनेस नहीं है, उनको जो पेरेंट्स अभी नहीं है, जो न्यू पेरेंट्स हैं, उनको मैं ये बोलूंगी कि सर हर किसी को थोड़ा सा सेंसिटाइज होना चाहिए. बिकॉज सर कई पेरेंट्स मेरे पास बाहर जैसे लंदन से भी आए हैं, वहां पे ये बोलते हैं कि मैम वहाँ थेरेपीज जो है थोड़ी एक्सपेंसिव एंड पे है. Obviously, right. बट वहाँ पीपल आर वेरी सेंसिटाइज. यहाँ पे जनरल पब्लिक इज नॉट वेरी सेंसिटाइज. अगर आप मॉल्स में जाएंगे वो वैसी फैसिलिटीज नहीं है, तो अब रैम्प्स वगैरह क्रिएट हो रहे हैं, चाहे वो पार्किंग्स ले लीजिए, चाहे आप नॉर्मल एलिवेटर्स हैं, स्टेयरकेस नहीं है, मतलब अब जो है ऐसी मॉडिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफिकेशंस भी हो रही हैं. बच्चे जो होते हैं इनको ऑटिज्म वाले, इनको सेंसरी ओवरलोड होता है, साउंड से प्रॉब्लम है. आप मॉल गए, इतनी आवाज हो रही है, बच्चे ने पूरे कान बंद कर लिए. तो आप प्लीज ओवर रिएक्ट ना करें बच्चे को देख के. अगर बच्चा बहुत तेज चीख रहा है, चिल्ला रहा है, सो आप नॉर्मली रिएक्ट करें. अगर आप ऐसा कुछ बोल देंगे या आप ऐसा रिएक्ट करेंगे तो बच्चे के और बिहेवियर्स आए, वो पेरेंट्स भी बहुत थोड़ा शेमफुल फील करते हैं. तो इसीलिए कई पेरेंट्स तो सर ऐसे हैं जो बाहर ले जाना ही नहीं पसंद करते. तो मेरी ये स्कूल सिनेरियो पेरेंट्स और जनरल पब्लिक से ये है कि थोड़ा कोऑपरेट करें, सेंसिटाइज करें अपने आप को. जैसे मैं अपने पेरेंट्स को बहुत बोलती हूँ, जो मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, कि आप अपने बच्चे को जितना सोशल गैदरिंग्स में ले जाएंगे उतनी जल्दी इंप्रूवमेंट आएंगी. जैसे अब जो करंट इंडियन सिनेरियो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज का आ गया. तो मैंने कई ऐसे पेरेंट्स को गाइड किया जिनको मैंने शायद आज तक देखा भी नहीं है. ये कि आप क्योंकि जॉब्स के लिए पेरेंट्स बाहर जाते हैं, आई नो सबकी अपनी फैमिली डिफरेंट है, सबकी सिचुएशन डिफरेंट है, बट मैं आपको जनरल एग्जांपल दे रही हूँ. पेरेंट्स आर लिविंग अवे फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स. मदर फादर है वो अपने डेली रूटीन में इतना बिजी है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है बच्चे के. एज अ पेरेंट अपने बच्चे के साथ बॉन्ड क्रिएट करें. सर एक बच्चा मेरे पास आया, उसके पेरेंट्स ने उसको 5 साल तक घर से बाहर ही निकाला, बिकॉज दे थॉट दैट हमारे बच्चे के साथ कोई डिफिकल्टी है, अगर हम बाहर निकालेंगे हमारा बच्चा डिफरेंट बिहेव करेगा तो सोसाइटी क्या कहेगी. करेक्ट. सो मेरा ये that shame and that tag. yes, that shame, that guilt, वो पेरेंट्स को भी बहुत गिल्ट होता है कि why me. I know being a parent it is a toll on parents also, कि वो उनके ऊपर कितना इमोशनल प्रेशर और कितना इमोशनल स्ट्रेस है कि हम इस चीज को कैसे डील करें. सो आई एम डीलिंग विद पेरेंट्स काउंसलिंग ऑल्सो. मेरे पास बहुत
सारे ऐसे पेरेंट्स आ रहे हैं जिनको हम पहले पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं, फिर बच्चे के साथ काम करते हैं। तो मैं अपने पेरेंट्स को यही कहती हूँ कि शायद इफ यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी, इफ यू बिलीव इन गॉड, कि शायद भगवान ने आपको उस पोजीशन में रखा है, उस वैसा क्रिएट करा है दैट यू कैन हेल्प दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन. That is why your child is like this. And God has, perfectly choose you as the parent of this child. So you are blessed in that sense. मैं थोड़ा सा इस चीज में जानना चाहूंगा कि जो टेक्निक्स होते हैं और जो टीचिंग के टूल्स मेथड्स होते हैं, हाउ डिफरेंट आर दोज, एंड वो क्या अप्रोच कैसे रहती है उन टूल्स और टीचिंग्स को अप्लाई करने में? इट इज डिफरेंट विद एवरी किड. जैसे मैंने आपको बताया, हर बच्चा अलग है. तो सर जो बेसिक चीजें स्कूल सेटअप और क्लिनिकल सेटअप में है कि आपको कोई भी अगर आपको बच्चा ऐसा मिल रहा है या आपके इंटरेक्शन में आ रहा है, आपको बहुत क्लियर क्रिस्टल इन्फॉर्मेशन देनी है. जो भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आपकी जो स्टेटमेंट हो, सेंटेंस जो हो, वो शॉर्ट एंड क्रिस्प हो. आप हर बच्चे को नाम से बुलाएं, किसी भी XYZ बच्चे को नाम से बुलाएं. Yes, you don't use these kind of words. You, so this is ethically wrong. और हर बच्चे के साथ टीचिंग टेक्निक्स भी सर डिफरेंट है. कोई विजुअल लर्नर है, कोई काइनेस्थेटिक लर्नर है, कोई ऑडिटरी लर्नर है जो सुनकर सीख जाता है, कोई विजुअली देख के सीख लेता है. तो ये स्कूल सिनेरियो और पेरेंट्स के साथ है कि आपको लर्निंग स्टाइल्स आइडेंटिफाई करने हैं अपने बच्चे के साथ. आप पढ़ाते जा रहे हैं, यू आर मेकिंग योर चाइल्ड की लर्न कर एंड योर चाइल्ड इज नॉट एबल टू डू इट. आपको उसको टेक्निक्स समझानी है. आपको अपने एज अ पेरेंट यू नीड टू सेल्फ स्टडी करना है कि अगर मेरा बच्चा इस टेक्निक से नहीं पढ़ रहा तो क्या मैं अगर इसके साथ एक विजुअल ऐड कर दूंगी, या मैं उस चीज की इसकी रिकॉर्डिंग की इंटरप्रिटेशन दे दूंगी कि आप शायद मेरा बच्चा लर्न कर ले. या मैं उस बच्चे को काइनेस्थेटिक लर्नर सर हाथ लगाकर फील कर जैसे जो कई बच्चे होते हैं, अगर आपने देखा होगा, वो फ्लैश कार्ड से सीखते हैं. ठीक है. तो हमें डिफरेंट टेक्निक्स, वो डिफरेंट टीचिंग एड्स आते हैं. पपेट से अगर हम, एक पेरेंट है वो बोल रहा है मैम मैं तो कब से अपने बच्चे को ABC सिखा रही हूँ, वो सुन ही नहीं रहा. मैंने पोएम्स के थ्रू भी करा लिया, मैंने लिख के भी करा लिया, सब चीजों से करा लिया, बट वो कर ही नहीं रहा. तो आपने क्या डिफरेंट तरीके, फ्लैश कार्ड से आपने पपेट्स यूज करके, आपने मिमिक करके क्या दिखाया अपने बच्चे को. आपको डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग जो है वो अपने बच्चे के लिए फाइंड आउट करने हैं. आई नो बहुत अच्छे अपकमिंग स्कूल्स हैं जो प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं, जो सैंड पिट प्ले के थ्रू करा रहे हैं, जो फ्लैश कार्ड्स के थ्रू करा रहे हैं. बट कई ऐसे स्कूल्स हैं जो पुरानी पेन पेपर पेंसिल वाली टेक्निक्स ही करा रहे हैं. तो ये हर बच्चे के लिए सर डिफरेंट है. आपने बोला कि आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. अगर एक टीचर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही तो टीचर को अप्रोच करना चाहिए सीनियर अथॉरिटीज को. हर स्कूल में कोऑर्डिनेटर होता है, सेक्शन इंचार्ज होता है. अगर वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही तो आपको यहाँ प्रोफेशनल हेल्प लेनी है. आपको आपके स्कूल में अगर स्पेशल एजुकेटर है या काउंसलर है या आप अपॉइंट कर रहे हैं, तो वो काउंसलर या स्पेशल एजुकेटर जो है वो नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करेगी. सर इसके भी सर्टेन स्टेप्स होते हैं. एक प्रोटोकॉल होता है कि हम नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन करते हैं. उसमें भी सर हम डिफरेंट सेट ऑफ सिनेरियोज में करते हैं. जैसे हमने सोशल प्ले में किया, अगर बच्चा प्लेग्राउंड में गया, उस सेटिंग में बच्चे का क्या रिएक्शन है, क्या वो जेल अप हो रहा है अपने पीयर ग्रुप के साथ, क्या वो सिर्फ साइड में जाके बैठा है, मतलब ही इज मोर इंटरेस्टेड फॉर सॉलिटरी प्ले, क्या वो बच्चा इसके साथ अपने पीयर ग्रुप्स के साथ है बट ही इज मोर इंटरेस्टेड फॉर टॉकिंग टू अ टीचर. वो उसके पीयर ग्रुप्स उसको बोल रहे हैं कि आके इन्वॉल्व हो, बट ही इज नॉट, यू वांटेड टू टॉक टू अ टीचर. और बच्चा जब स्कूल सेटअप में क्लास के अंदर है तो टीचर का क्या रोल है, मतलब टीचर के साथ उसका रैपो कैसा है. जैसे हिंदी के कई से बहुत पेरेंट्स आते हैं कि हिंदी नहीं पढ़ पाता मैम मेरा बच्चा, तो हिंदी टीचर के साथ शायद वो रैपो नहीं है, या वो बच्चों को मात्राओं की फॉर्मेशन, क्योंकि सर जो LD वाले बच्चे हैं सर, एक LD ऐसा डिसेबिलिटी कहूंगी मैं या डिफिकल्टी जो 7 years एंड ऑनवर्ड्स आप उसकी रिपोर्ट्स या आप उसका असेस कर सकते हैं. जो पेन पेपर साइकोलॉजिकल असेसमेंट जो होता है आपका, वो 7 years के बाद होता है. तो स्कूल्स भी आपको रिपोर्ट्स मांगते हैं फॉर अदर बेनिफिट्स, जैसे आपको स्क्राइब देना या आपकी इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग कैसे होनी चाहिए टीचर की, वो हम 7 years के बाद डिसाइड करते हैं. ये LD के केसेस में ही होता है जो आप 7 साल के बाद करते हैं. बाकी सारी जो डिफिकल्टीज और डिसेबिलिटीज हैं
वो हम 7 years से पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो मैं ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट पे आऊंगी सर, तो डिफरेंट सेटिंग्स में हम ऑब्जर्व करते हैं, ये एक प्रोटोकॉल होता है। फिर जो स्पेशल एजुकेटर है वो एक रिपोर्ट काइंड ऑफ अ फॉर्म बनाती है, देन शी विल डिस्कस विद द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो जैसे प्राइमरी की है, प्राइमरी का बच्चा है, या मिडिल की है, एंड देन इट्स अ टीम एफर्ट। क्लास टीचर का फीडबैक भी हम लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू यू एज अ क्लास टीचर, एज अ सब्जेक्ट टीचर, एक्स बच्चे की ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू यू क्या है, समझ रहे आप? उसके साथ अलग होगी। जो नॉन पार्टिसिपेटरी मैंने ऑब्जर्वेशन करी, मेरी नजर से अलग होगी, क्योंकि मेरा लेंस डिफरेंट सेट ऑफ चीजें देखेगा और आपका लेंस डिफरेंट सेट ऑफ चीजें देखेगा, ठीक है? तो मेरी ये हमारा ये प्रोटोकॉल होता है, हम ऐसे ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर हम सर थर्ड स्टेप में पेरेंट्स को बुलाएंगे, हम इनफॉर्मल इंटरेक्शन करके हमारे पास जो भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे विद एन एग्जाम्पल कि बच्चा फॉर एग्जाम्पल बोर्ड कॉपिंग नहीं कर रहा। एलडी के केसेस में मैं आपको स्पेसिफिकली बता रही हूँ, बच्चे के साथ बोर्ड कॉपिंग में डिफिकल्टी है। पेरेंट बोलेगा मैम आई साइड इशू है, तो ठीक है सर एंड मैम यू कैन गो फॉर आई चेकअप। उसके बाद वी कैन ऑब्जर्व फॉर 1 more month, बच्चा आई चेकअप करा के आया, अगर आई साइड वीक है तो स्पेक्टिकल्स यूज कर रहा है, या बच्चे के साथ जेन्युइनली उसको, अगर आपने तारे ज़मीं पे देखा हो तो जेन्युइनली अल्फाबेट्स ऊपर नीचे दिख रहे हैं, जम्बल हो जाते हैं, जम्बल्ड अप हो जाते हैं। मिरर वाले जो अल्फाबेट्स है जैसे MWU, ये हमें उल्टे नजर आ रहे हैं, तो बच्चा बोर्ड कॉपिंग कैसे करेगा? तो ये टीचर को पता ही नहीं है कि ये बच्चे के साथ डिफिकल्टी है। तभी यहाँ हम स्पेशलाइज्ड हेल्प लेते हैं, स्कूल अथॉरिटीज को टीचर्स अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि एवरी टीचर इज नॉट दैट स्किल्ड। आई वुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन अगर टीचर के पास वो स्किल सेट है, बट वो स्किल सेट लेने के लिए भी आपको प्रोफेशनली वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जैसे आपको कुछ कोर्स करना पड़ेगा फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन। जैसे आजकल जो बहुत टीचर्स और स्कूल सिस्टम जो मांग रहे हैं डिग्री, दैट इज अर्ली ECCE, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन करिकुलम का एक कोर्स होता है, उसमें भी these kind of difficulties and disabilities हम डिस्कस करते हैं। एक चीज मेरे को है, हाउ डू यू डील विद द इमोशनल बर्नआउट ऑन डिफिकल्ट डेज? आई एम प्रीटी श्योर इट मस्ट बी वेरी हार्ड, एंड क्योंकि सर आर इमोशनल बर्नआउट्स, बिकॉज आप इतना पेशेंस चाहिए होता है, इतना एम्पैथी चाहिए होता है, नॉट इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। ट्रू, थोड़ा तो वो बर्नआउट हो जाता होगा, एंड कैसे डील? सर सो आई एम अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, सो दिस इज माई हैबिट बिफोर गोइंग टू अ बेड फॉर 5, not more than 10 minutes, I do chanting, Namyo ringing. It's an Buddhism prayer. No, I know. So I do that. Correct. Towards the end, I have this very specific question. What's your vision for the future of special education in India and globally? My vision is very different. I want to help, each and every parent. I want to create my setup in the upcoming years. I have plans there where it's a one roof therapy, where parents should not go from one therapy. Yes, I've seen parents going from one therapy to another therapy because a lot of toll is there from traveling to stress of paying. So one roof setup, I would love for other specialists also to create that kind of environment, friendly environment for our upcoming children with special needs. Don't create that taboo, that stigma that isko difficulty hai, isko mental illness hai. Give that friendly environment. आप किसी प्ले जोन में जाते हैं, वहां भी आपसे, आई विल नॉट नेम, वहां भी आपसे पूछा जाता है कि आपके बच्चे के साथ कोई फिजिकल चैलेंज तो नहीं है, या आपके बच्चे के साथ कोई मेंटल हेल्थ इशू तो नहीं है, कि ताकि वो दूसरे किसी बच्चे को हार्म ना करे। तो ये एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट दीजिए। अगर ऐसे बच्चे आपके पास आ रहे हैं तो आपके पास वैसी फैसिलिटीज और आपका मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होना चाहिए, दैट एक जोन होना चाहिए वेयर यू हैव दैट specialized person who can take care of them. Right. So it is a very sensitized topic to talk and discuss, and I want our general public to be little aware and sensitized towards these kind of kids and adults. So this is my request, and I am very very sorry if I have said anything wrong. No, absolutely not. Regarding that, which might can hurt anybody's sentiments, either parents or anybody.
थैंक यू फॉर कमिंग वंस अगेन, थैंक यू सो मच। Thank you. Yes. तो गाइज ये थी हमारी कॉन्वर्सेशन आकांक्षा टंडन जी के साथ। आज हमने ऑटिज्म पे बात करी, ADHD के बारे में बात करी। आई होप यू लाइक द एंटायर पॉडकास्ट एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द मेंटालिटी।